Welcome. Welcome to the Facebook Live session. It's good morning in India and it's good evening in North America. So, really, I want everyone to feel welcomed. Give yourself the space, the warmth of really being welcomed. I'm waiting for a few more viewers to join so that we can begin the program, this session. Hi Tarun. Good morning Sanjeev ji. I hope things are getting better and normal day by day everywhere, and now very soon people are going to be getting back into their normal lifestyle. Having said so, this last 45 days have brought in different memories for everybody. Whether it's any part of the world, we have had some good me time, the self time, which was not available before in our jam-packed rather I would say, lifestyle. So let me begin by acknowledging Everest Yoga Institute and the team behind it. So I was asked by Tarun Manku, she's my landmark buddy from Ludhiana, India. After watching my video on Facebook, she asked me, Vishal, would you like another session to contribute and empower people? I said, sure, why not? I just love that. That's why we created this session. And I really want to acknowledge the team behind it because they have taken a really good initiative by calling people onto their Facebook page live so that a lot of people who are having time to work on themselves, they can listen to a lot of experts in different areas and fields and learn something new and improve on and transform their skills. So really great initiative. I'm so happy and I wish you all the very good for all your future endeavors. So let me begin now by saying something about myself. So I am Vishal Jain. Currently I am in Victoria. This is in British Columbia, Canada. I moved here almost 2 years ago, and I am currently pursuing and about to finish my master's degree in global management. Before moving here, I had my 20 years of experience in the industry. I was born and brought up in Jammu by my parents, my dear and lovely parents.
And after that, I moved for my studies to Pune. Then I went to Mumbai and Delhi before I came to Ludhiana, where I have done business for almost 16 years. And after that, I moved on to Delhi and then here to Canada. During my course of this journey, which began like almost 16 years ago in 2004, I have this quest and this thirst for really looking at how our mind has imprisoned us. And that curiosity led me to do all these transformational programs and got me into meditation. You know, I am a person with a lot of turbulent energy, so-called, like turbulent mind, right? So to say, मेरा मन बहुत चंचल है और ये एक 100 बुल्स रेस की तरह चलता है और मैं इसको टेम करने के लिए और ट्रेन करने के लिए बहुत सालों से इस जर्नी और यात्रा में हूं। इस यात्रा में मैंने काफी साल लैंडमार्क एजुकेशन में लगाए और उसके बाद मैंने विपासना का एक्सपीरियंस लिया, ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया। उसके बाद काफी समय तक मैं ओशो के साथ जुड़ा रहा और मैंने ओशो में जिसे संन्यास बोलते हैं वो लिया ताकि मैं अपनी जिंदगी में मेडिटेशन और ध्यान को हिस्सा बना सकूं, उसको ला सकूं। सो मेरा जो सन्यासी नाम है वो है स्वामी आत्मो सत्यम, जो कि मुझे मेरे स्वामी अंतर जगदीश और मां ध्यान आभा से मिला है। मैंने काफी समय पिछले कुछ सालों में हिमाचल में धर्मशाला में आश्रम में लगाया और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे कोर्सेज करे और इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सब चीजें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है और ये कोर्सेज बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोर्स पे कोर्स, कोर्स पे कोर्स, कोर्स पे कोर्स, कितने कोर्स और कब वो निर्वाणा की प्राप्ति होगी। तो मैं अभी उन लोगों में से था जो भटक रहा था, भाग रहा था, भागते भागते जर्नी खत्म ही नहीं हो रही। एक कोर्स, दूसरा कोर्स प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा, कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा इस धरती के अंदर जो मैंने नहीं किया। इवन मैंने बब्बू जी से भी उनका हीलियो लाइफ कोर्स करा है। बट देन आई केम टू वन कंक्लूजन दैट all this information, all this gyan, technology, this is very, very good. But they are useless if they are not part of your lifestyle. They are useless if it's that not your habit and then you have an access to live a life of celebration. तो मैं आप लोगों के साथ आज जो है ना बातचीत करूंगा। मैं कोई प्रोग्राम या सेशन या ऐसा कुछ कोर्स नहीं आपको डिलीवर कर रहा। मेरी जो जिंदगी की जर्नी है और मैंने खूब जद्दोजहद करी है और ये जो हमारा मन है और जिसको हम अपना माइंड कहते हैं, आई हैव रियली हैड गुड टाइम्स एज वेल एज स्ट्रगलिंग टाइम्स, लाइक टॉम एंड जेरी। वो भागता और मैं उसके पीछे भागता, वो फिर भागता मैं उसके पीछे भागता उसको। तो ये जर्नी मैं आपसे शेयर करूंगा आज। तो मैंने जो टॉपिक का नाम भी चुना, जब मुझे बोला कि आप किस पे बात करेंगे, तो मैंने जो सोचा कि सबको पता है आज की डेट में ज्ञान की कमी नहीं है, राइट? गूगल देखता है हमारे और सब कुछ एट टच ऑफ बटन, सबको पता है मेडिटेशन क्या होता है, मेंटल हाइजीन क्या होता है, हैबिट्स क्या है, सबको सब कुछ पता है।
तो मैं इस प्रोग्राम को जब इसके ऊपर होमवर्क कर रहा था और मैं टॉपिक के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, बेसिकली ये हैबिट और लाइफस्टाइल कैसे बने, इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल. सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है. आई हैव ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, दोज हु आर प्रेजेंट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहां पर आए. आप कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, राइट? मॉर्निंग टाइम है, सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है, बट दोज हु हैव चोजन टू बी हियर, थैंक यू सो मच. बट जब आप आ ही गए हो तो एक कमिटमेंट करो कि ये आप इसमें, ठीक है, अच्छा प्रोग्राम है, कुछ सुनते हैं, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है, या और बहुत सारा कुछ जो आपके मन में चल रहा है. मैं आपको बोलूंगा कि आप ये जो शुरुआत है, जो हम आज जिस एक्सरसाइज या मेडिटेशन की बात करने वाले हैं, वो मन के ऊपर है. और क्यों ना आप अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि इस सेशन में मेरा मन जो भी बोले, मैंने उसको ऑब्जर्व करना है. वो बोलेगा यार बोर है, छोड़ो, मेरे मतलब का नहीं है यार, ये सब मैंने सुना हुआ है, ओके, इस तरह की बहुत सारी बातें बोलेगा, बहुत लंबा है, बहुत बोरिंग है, तो उस वक्त आपने प्रेजेंट होना है, मौजूद होना है और अपने मन को देखना है. और उस मन की जो सीमा है उसको लांघना है, उसको तोड़ना है और बने रहे. और किस लिए बना रहे? इसलिए बने रहना है क्योंकि आज आप इस जो समय आप दे रहे हैं, जो टाइम आप दे रहे हैं, so whatever you are spending with me this hour or so, you should be committing to yourself. You are going back with creating a commitment to make this as a part of a lifestyle and make this as a habit. Then that's what I am here for, really. Not giving you any sort of gyan, but making you understand कि how this whole process can help us train our mind together, and then we can commit so that we can take this forward as our lifestyle and a habit. So, as I was sharing with you about my whole journey, about meditation and different processes, I like to talk to you about the concept first. आज मेरे टॉपिक में हमने ये डिसाइड कर रहा है कि मेडिटेशन तो अच्छी चीज है, सबको पता है, सब लोग आजकल कर रहे हैं, इट्स लाइक फैड, राइट? और तो करना चाहिए, राइट? जैसे वेट रिड्यूस है और उसके लिए बहुत सारा कुछ करना चाहिए, तो आजकल कुछ चीजें बहुत जल्दी लाइफस्टाइल की फैशन भी पकड़ लेती हैं. बहुत अच्छी बात है, हमको करनी चाहिए, हमको सीखना चाहिए. बट क्यों? सबसे पहले जरूरी है क्यों. कि कोई भी चीज जब तक हम उसका क्यों नहीं ढूंढ लेते, उसकी वजह नहीं ढूंढ लेते, तब तक वो हमारा हिस्सा नहीं बनती है, तब तक वो हमारे ज्ञान तक सीमित रहती है और वो ज्ञान अच्छा लगता है. और फिर हम जब एक कोर्स करते हैं, एक कोर्स करने के बाद बाहर जाते हैं, तो जिंदगी वापस हमें वैक्यूम की तरह सक कर लेती है और हम फिर उस चक्की में गोल 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 घूमते रहते हैं और अपने मन के दोबारा पिंजरे में आ जाते हैं और उसके बंदी बन जाते हैं. हम सब, मैं और आप, ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास जो माइंड है ना, ये हमारे ऊपर इतना हावी है कि इसकी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे को जो हम हैं वो होने ना दे, और जिस तरह से इसको हमको चलाना है ये चलाए, अपनी मनमर्जी करे और हम उसके बहाव में, उसके फ्लो में बहते चले जाते हैं. अब कोरोना वायरस कोविड-19 आया, हमें लॉकडाउन दिया उसने. वी वर लाइक इन आइसोलेशन एंड कंप्लीट लॉकडाउन. बट हैव यू एवर realized that we have been in lockdown since many centuries? The lockdown of our mind. We have been imprisoned by that.
And because of that, so there have been a lot of lifestyle diseases that has happened before this, right? So now these days everybody is working like we should have less stress levels down karo, stress level down करना अच्छी बात है, बट जब तक हम किसी चीज के सोर्स पे नहीं पहुंचते तो उसको जानने से मात्र कुछ नहीं होगा। खाली स्ट्रेस लेवल्स कम कैसे करने हैं, मेडिटेशन करने हैं, ध्यान लगाना है, कुछ फोकस करना है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। Unless and until we decide and we commit to ourselves कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत क्यों है, वो जो प्रश्न है अपने आप से पूछना है और उसका आंसर ढूंढना है। बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं यार ये सब जो है ना, जो लोग जिनके पास बड़ा फ्री टाइम होता है ना, जो सो कॉल्ड कहते हैं वेले, उनके काम है ये। हमारे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। हमारे पास तो जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट इफ यू आर टू बिजी इन योर लाइफ, बट इफ यू ऑनेस्टली ऑथेंटिकली आस्क यू योरसेल्फ, अपने आप से पूछें और बात करें, ये जो आप जिंदगी में बिजी हैं, किन चीजों में बिजी हैं, और उस जो भी आपकी आउटपुट है जो आपको बिजी करके रख रही है, उसमें प्रोडक्टिव कितना है। जो मन की आपकी जो रेस है उसमें कितना सारा टाइम हमारा अनप्रोडक्टिव है। मैंने अपनी जिंदगी का स्क्रीन टाइम देखा। आजकल क्या है कि हम लोग सब स्क्रीन टाइम देख रहे हैं कि कितना स्क्रीन टाइम है, या अपने हेल्थ ऐप्स देखते हैं। तो मैंने स्क्रीन टाइम अपनी जिंदगी का क्रिएट किया और देखा मेरी जिंदगी में 50% से ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ टाइम इज ऑल अबाउट लुकिंग गुड, अवॉइडिंग लुकिंग बैड एंड बीइंग fearful, always under the fear of getting judged and evaluated by the other person. And all of my energy is directed to react to that mindset. अब हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। माइंडसेट मतलब क्या? माइंडसेट, जो हमारा एक माइंड है वो सेट हो चुका है। और किस चीज के लिए सेट हुआ है? यू नो व्हाट? वो सेट हुआ है सर्वाइवल के लिए। और इसकी बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हुई है। आपको पता भी नहीं कि आपका इतना माइंड जबरदस्त तरीके से ट्रेन हो गया। भाई जब तक तो हम लोग गर्भ में थे, वी वर इन द मदर्स वूम, एवरीथिंग वाज ऑल गुड एंड ब्यूटीफुल। कोई टेंशन नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब कुछ, खाना भी पूरा पाइप से मिल रहा है, पूरी मस्ती है, आराम से मजे हैं, सो रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना एकदम। उसके बाद द मोमेंट वी आर बोर्न इनटू द वर्ल्ड, सो इमेजिन what start happening. Our mind gets trained unintentionally. We are not training our mind to survive, but how we grow up, how we have our environment, हमारी parenting, हमारी schooling, हमारी society, ये combination है इन सब चीजों का, जिसमें हमें बताया जाता है कि भाई जिंदगी में सर्वाइवल करने के लिए तुम्हारे को बहुत जद्दोजहद करनी है। और सर्वाइवल किस चीज का? शुरुआत में तो फिजिकल सर्वाइवल की हम बात कर सकते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बट ये उससे बहुत बियॉन्ड है। ये है हमारा आइडेंटिटी का सर्वाइवल, और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसमें डेवलप होते जाता है और हम बहुत स्मार्ट बन जाते हैं, जैसे सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं, मैनिपुलेटिव, और हमें जीतना आ जाता है, वी गेट टू विन एंड लूज। तो ये सारी ट्रेनिंग हो रही है, हमें पता नहीं, और हम ग्रो अप हो रहे हैं उसी के साथ। और वो ग्रो अप होते होते हम उस चक्रव्यूह में ऐसे फंसते चले जाते हैं कि हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम उसके बंदी बन गए।
और हमारे वश में कुछ है ही नहीं। जो हमारा माइंड सेट हो गया, जो हमारी माइंड की ट्रेनिंग होगी ऑटोमेटिक। तो इसलिए मैं कहता हूं हम सब लोग क्या हैं, चलती फिरती हार्ड डिस्क्स हैं, जिसके अंदर पहले ही हमारी सब कंडीशनिंग हो चुकी है, सब कुछ सेव हो चुका है और हमारी सारी रिएक्शंस जितनी भी हो रही हैं वो उससे हो रही है। कोई सिचुएशन आती है, कोई सर्कमस्टेंस बनती है, तो हम लोग वो तो सेव्ड है, कुछ करना ही नहीं है ऑटोमेटिकली। और सरवाइव करना भाई रूल है जंगल का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। अब एक एनिमल किंगडम में हम देखते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं रेप्टिलियन ब्रेन की। रेप्टिलियन ब्रेन का तो जैसे ही खतरा महसूस होता है तो अटैक करता है ऑटोमेटिक। हमारा भी एक ब्रेन का पार्ट जिसमें एमिगडुला या रेप्टिलियन ब्रेन होता है, उसमें भी क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे उसके अंदर फीड हुआ है खतरा भापा अटैक। अब खतरा किस चीज का? खतरा आइडेंटिटी का। भी कोई लोग मुझे जज ना करें, मैं अच्छा दिखूं और मेरे बारे में अच्छी बातें हों, कोई भी, तो ये सब जो आइडेंटिटी की चीजें जिसको हम एक एक लेयर बना के ऊपर और अपने जिसे कहते हैं डेवलप कर लेते हैं अनइंटेंशनली, वो माइंड, उससे हम जिंदगी जी रहे हैं और हमें तो पता ही नहीं, हमने तो अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया। और जहां की हम बाकी बात करते हैं लाइफस्टाइल की, तो हमने पूरी तरह ट्रेनिंग लिया। अब लाइफस्टाइल होता है क्या? हमारा रोजमर्रा का जीवन का हिस्सा, राइट, हमारी हैबिट्स। अब ये हमारी हैबिट हमने जानबूझ के फॉर्म नहीं की, बाय डिफॉल्ट हमारी होती चली गई और हम हर जगह सरवाइव कर रहे हैं, चाहे झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, कुछ भी करके, क्योंकि हमको सरवाइव करना है। अब हम लाइफस्टाइल जो देख रहे हैं वो हमारा ट्रेंड है। अब बेसिक चीजें हैं, हम पैदा हुए और हमने देखा कि भाई हमारे को हमारे पेरेंट्स ने ट्रेनिंग दी कि भैया पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नित्य नियम करना है। लाइक दिस इज ऑलमोस्ट नेसेसिटी एंड इट्स सो रिक्वायर्ड इन योर लाइफ बिकॉज you have been told and then you've been trained to do this. Like getting up early in the morning after you get freshened up, go to toilet, brush your teeth, bath, take the shower, and this is your basic everyday, like you know, you do automatically. इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसके लिए कोई प्रोग्राम अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, राइट? ये हमारी ट्रेनिंग, ये इंटेंशनल ट्रेनिंग हुई और हमारा हैबिट पैटर्न बन गया। क्योंकि बार बार हमारे को किसी ने टोका और बार बार किसी ने हमारे को पिन पॉइंट करा कि नहीं ये जरूरी है, इसके लिए हम करते गए और हमारा हैबिट फॉर्म हो गया। बट हमारे को किसी ने ये नहीं बोला कि भैया मेडिटेट करो, अपना जो माइंड सेट है उसको देखो और उसको डेवलप करो इंटेंशनली, ताकि तुम एक जिंदगी जिसमें तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सको, अपने मन के स्वामी बन के, मन जीत बन के जिंदगी जी सको। लाइक यू नो, पंजाबियों में नाम होते हैं मन जीत, जग जीत, हम भी सब बोलते होते हैं, सुना हुआ है, जिसने अपना मन जीता उसने जग जीता। तो अब मन को जीतने की हमारी ट्रेनिंग नहीं, अभी तो काफी मैं देखता हूं लोग पेरेंट्स बच्चों को डाल रहे हैं मेडिटेशन में और सब चीजों में, प्रोसेस में। बट जब हमने अपने लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग करी तो अब उसी तरह से जब हमने अपने मन को देखा कि भाई हम किसी उसने अधीन हैं और हम अपने आप को, वो जो हमारी जिंदगी एक इतनी खूबसूरत है जो मिली है, जिसमें हम अलग तरीके से जो हमारा होना, जो सेल्फ है, वो जी सकते हैं, तो उसके लिए हमको अपना हिस्सा बनाना है इसका, अपनी जिंदगी का, अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है हमको। सो जब हम ये देख लेते हैं कि यार इतना हम ज्ञान होने के बावजूद भी हम इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा क्यों नहीं बता सकते, हमारी प्रायोरिटी क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मुझे लगा कि मैं अपनी रेस में, जो मेरे मन की रेस है, उसके लिए भागता जा रहा हूं, भागता जा रहा हूं, भागता जा रहा हूं, कोई अंत ही नहीं है। मैंने शहर बदले, मैंने देश बदला, रिलेशनशिप्स, कोई अंत नहीं। और जब मैं भाग भाग के थक गया, तो मुझे लगा यार ये क्या चीज है जो पकड़ में नहीं आ रही है। तो
उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया जिंदगी में कि नहीं, मुझे इस रेस से बाहर आना, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस टाइम पे मैंने इसको अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाई, हिस्सा बनाया कि नहीं, मुझे ये कंडीशनिंग को ब्रेक करना है। इसी तरह से आप सब लोग भी अपना वो वाई क्वेश्चन ढूंढो, क्यों प्रायोरिटी बनाना। देखिए, दो तरह से प्रायोरिटी बन सकती है, या तो मजबूरी, यू आर फोर्स्ड अपॉन, और बाय चॉइस। ठीक है, आजकल तो डॉक्टर भी लिख के दे देते हैं कि भैया आप मेडिटेशन करें, थोड़ा सा लाफ्टर करें, हंसें, और इट्स अ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। लेकिन होता क्या है कि जब तो मजबूरी बन गई तब तो ठीक है, फिर करना ही है, ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, वो मजबूरी बनने से पहले जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे और कोई, उससे पहले ही हम अपनी चॉइस कर लें और अपनी क्रिएट करके इसको एफर्ट करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हमने माइंड देखा, हमने माइंडसेट देखा, हमने उसका इंपैक्ट देखा, किस तरह से उसने हमें चारों तरफ से सरेंडर किया हुआ। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई हम बात कर रहे हैं बिजी रहने की, तो रिसर्च हुई, रिसर्च में ये बोलती है कि जितना भी हम टाइम कुछ भी चीजें कर रहे होते हैं, उसका सिर्फ जो प्रोडक्टिव एक्शन है ना, वो उसका 10% ही होता है। बाकी सब इधर उधर की बातें, पास्ट की, फ्यूचर की, डर की, वो सब जो कहानियां हैं वो 90% अच्छा है। तो इमेजिन करो कि वो जो 10% प्रोडक्टिव टाइम है, राइट, अगर वो धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेगा, तो आपके पास कितना टाइम होगा, इतना टाइम होगा। और आप अपने आप को जब इन प्रैक्टिसेस में लेके आएंगे, तो आपके और इसके एडवांटेजेस क्या है। आप अपने जो लाइफस्टाइल है उसको सुधार कर सकते हैं, और जो आज की डेट में सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उनसे बच सकते हैं। अदरवाइज, मैंने अपने आज के टॉपिक में ये बात हम करने जा रहे हैं मेंटल हाइजीन की। सो अब हम थोड़ी बात करते हैं मेंटल हाइजीन पे। मेंटल हाइजीन क्या होता है? फिजिकल हाइजीन की हमने बात करी, अब मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन, तो उससे पहले हम हाइजीन समझते हैं क्या है। अब हाइजीन इज योर क्लींजिंग एंड क्लीनिंग ऑफ योर सराउंडिंग्स, and mostly we relate to this with garbage, right? So how do you clean every day your garbage, right? अगर आप अपना garbage नहीं clean करो तो क्या होगा? थोड़े दिन पड़ा रहेगा smell, bacteria, germs and chances of infection. Exactly. और हमारे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में we have 4 different garbages. We have a wet compost, उसको हम separate करते हैं. Then we have a dry garbage, then recycling of tins, glasses, paper, cardboard, everything happens separately. हमारे पास 4 जगह हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, फिर 4 जगह हम उसको डिस्पोज करते हैं। वाह, ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आजकल सब दुनिया बात कर रही है सस्टेनेबिलिटी, राइट, पर एनवायरमेंट, पोल्यूशन। मैं ये कह रहा हूं कि भी सस्टेनेबिलिटी, सबसे पहले अपना माइंडसेट तो सस्टेन करें, अपने माइंड को एक स्टेबल तो सस्टेन करें, तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली हो ही जाने वाली हैं। सो अब हाइजीन की बात हम कर रहे हैं, सफाई तो हम कर लेते हैं। अब जहां तक बात आती है हमारी जो मन का जो हाइजीन है, वो क्या है? वो जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव विचार हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते, अभिव्यक्त करते हैं, कुछ लोग उसे अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं। वो जो सप्रेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर जाके वो सेम रिजल्ट क्रिएट करता है। जैसे आपका जो कूड़ा पड़ा है, बहुत गार्बेज पड़ा है बहुत दिनों तक, उसमें तो वो अंदर हो रहा है, वो विजिबल होता है, ये विजिबल नहीं है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। और बाद में जाके ये मैनिफेस्ट होता है, तब पता लगता है जब ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होगी, या टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया, या और बहुत सारे रोगों में कन्वर्ट हो गया। तो हम तब तक ही वेट करते हैं। तो ये जो हाइजीन है, ये सबसे जरूरी, मैं कहता हूं, शरीर की मैल धोनी
और अपने आप को साफ करना रोज रोज अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी है। बट ये जो हमारे मन की मैल है, जो हमारा मेंटल हाइजीन है, जो मोस्टली बीमारियों का कारण है, जो साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं कि मन से शुरू होती है। मैंने बाबूजी का भी कोर्स करा था और थोड़े दिन पहले वो लाइव थी, लुई से उनकी गुरु हैं, और वो कहती है कि लाइक हर किसी बीमारी का सोर्स जो है कहीं ना कहीं हमारे मन में छिपा है। मेरे फादर को पीछे हर्पिस हो गया, और मैंने जब स्टडी किया देखा तो उसका सोर्स ढूंढा तो वो निकल के आया सप्रेस्ड एंगर, वो मैनिफेस्ट हुआ कहीं ना कहीं और उसके रूप में बाहर आया। तो ये इतना जरूरी है हमारा हाइजीन। अगर हम इसको नहीं रिसाइकल करते हैं और इसको नहीं हम अपने थॉट्स को क्लेंस करते हैं और खाली करते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी रिसर्च में बताया गया कि इवन ट्यूमरस जो होती हैं कुछ डिसीजेस और बहुत सारे ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस प्लस लाइफस्टाइल डिजीज तो है ही है, जैसे मैं बताया ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये डायबिटीज हो गई, इम्यून सिस्टम। मैं आजकल ल्यूक कुटीनो को सुनता हूं, वो आजकल इसके ऊपर अपना जो नेचुरल
है, उसके अंदर प्यार होता है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है। तो पूरे दिन के अंदर जब हम रिएक्शन कर रहे हैं अपने आप को स्मार्ट समझते हुए मैनिपुलेट कर रहे हैं, पूरी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहे हैं, तो हम थक जाते हैं, राइट। हमारा मन जब ये सर्वाइवल की रेस में लड़ रहा है, कर रहा है, बार बार प्रूव करने में लगा, होता क्या है, मन थक जाता है, हम थक जाते हैं। अब हमको लगता है कि अब मन थक गया, अब मन को एंटरटेन करो, सो हम लोग मन बहलाने निकल जाते हैं। भाई मन थक गया, मन ने थका दिया, अब मन ने थकाया कहां, सारा तो सर्वाइवल की एनर्जी में, दौड़ धूप में, है ना, दूसरे से आगे बढ़ने में, पैसा कमाने में, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, उसकी जद्दोजहद में लगे हैं, बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, हैं, नाम हो जाए। अब बेसिक चीजें जिंदगी की सारी जिसके अंदर हम लगे हुए हैं, राइट। तो वो जो जिंदगी है वो तो थकाएगी ना, वो तो एनर्जी ड्रेन आउट करेगी। अब फिर हम मन बहलाते हैं, हम बड़े स्मार्ट तरीकों से मन बहलाते हैं। अच्छा जी, अब थक गया, चलो यार बहुत बोर हो रहे हैं, चलो अभी क्या है, कुछ लोग चलो मूवी देखते हैं, अब कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ चलो गेड़ी मार के आते हैं, कुछ लोग क्लबिंग चलते हैं, कुछ लोग चलो यार बेस्ट है अल्कोहल, बड़ा अच्छा मन बहलता है, शांत हो जाता है, राइट। सो पार्टी करो, मन तो बहला लेते हैं हम बड़े अच्छे तरीके से, हम उसमें भी एकदम एक्सपर्ट हैं मन बहलाने में। अब मन बहला तो लिया हमने, लेकिन जो मन के अंदर जो कचरा है और जो ट्रेंड हमारा माइंडसेट जिसकी वजह से हम इस रेस में दौड़ रहे हैं, वो तो नहीं हुआ ना खत्म, वो होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं मन भी है, वो एक बार ही खत्म होगा। या तो हम लकड़ियों के ऊपर चले जाएंगे या जमीन के अंदर चले जाएंगे। That is the only when we'll have complete disengagement and disconnect of our mind with ourselves, who so called soul and atma. But before then, what do we do then? So मैं कहता हूं बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मन बहलाना चाहिए, बहुत सारी चीजों में मन बहलाते हैं, बट ये मन बहलाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वो जो मन को हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, मन को हम जो उसके थॉट्स नेगेटिविटी को रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को वो जो मोमेंट, चंद लम्हे जहां पर हम हो सकते हैं, जहां पर वो हमें मिले जिंदगी जीने के लिए, वो लम्हे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये दौड़ है, इसीलिए ये स्ट्रेस है, इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीजेस है। हम खुल के जिंदगी जीते ही नहीं, हम हमेशा जजमेंट के डर में रहते हैं कि लोग जज करेंगे। आपने कभी किसी को देखा है, कोई डांस कर रहे होते हैं और कोई ऐसे हंस रहे होते हैं, लोग उनको ना बड़ी वियर्ड से निगाह से देखते हैं, एज इफ लाइक दे हैव डन सम क्राइम, राइट, एंड दे आर इनसेन, और पागल बोलते हैं, यार ये तो पागल है। अरे भाई, पागल मतलब क्या? जब आप डिसएंगेज और डिस्कनेक्ट करते हो अपने माइंड से, जो आपकी जिंदगी चला रहा है, आपको चला रहा है, तो वो जो क्षण आपके क्रिएट होते हैं, उसी क्षण में जिंदगी होती है, बिना सर्वाइवल के, बिना सेलिब्रेशन के, जहां थकावट नहीं होती है। तो ये जो टूल्स कुछ दिए, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी तरह के टूल्स हमारे पास हैं इन टर्म्स ऑफ सो कॉल्ड मेडिटेशन, जिससे हम अपने माइंड को अब इंटेंशनली ट्रेन करेंगे कि वो उन मोमेंट्स में जो इसमें हम प्रेजेंट हो सके, मौजूद हो सके, हम अपना अनुभव कर सके अपने माइंड से हट के। वो अब मेरे को और आपको चूज करना है कि हमारे लिए क्या सही है, राइट। पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि यार इसको हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट होना है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हमको लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है, एक अच्छी क्वालिटी जिंदगी जीनी है, तो ये मस्ट है, इसी से सब कुछ है। अब सवाल आता है कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। बहुत सारा कुछ है। आप जब गूगल करोगे तो इतनी मेडिटेशंस हैं, इतने प्रोसेसेस इन्वेंट हो चुके हुए हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है।
बट होता क्या है कि हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर हमारा मन कहता है नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है। मन तो आपको खींचेगा। मन सरवाइव करता है प्रोक्रेस्टिनेशन से। जो माइंडसेट है वो कहां से सर्व करता है? वो लेजीनेस से सरवाइव करता है। उसको कंफर्ट जोन चाहिए। अब हम उसको बहलाने में ले जाते हैं तो उसको मजा आता है कि हमको बहलाते रहो। ठीक है, बेस्ट तरीका अल्कोहल किया और स्विच ऑफ करके सो गए। बड़े लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूं, यार छोड़ो ये हमारे बस की रोग नहीं है। अरे भाई ये बस का रोग नहीं है, बट इससे निरोग होने के लिए ये जरूरी है। अब मैं ये एग्जाम्पल देता हूं, आजकल काफी चर्चा चल रही है ना टीवी पे, लोग घर पे बैठे, रामायण दोबारा से शुरू हो गया। तो रामायण में सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करी थी और रावण ले गया। यहां ना उल्टा है। यहां हमारे जो मन की रेखा है ना वो रावण है। अगर हम उस दहलीज को पार करते हैं ना तो वो राम को पालेंगे। तो यहां उल्टा है, ये दहलीज पार करनी है। मन तो हमारे रोकेगा, उसको तो कंफर्ट की आदत है, बट हमको उसको पार करके दूसरी तरफ जाना है ताकि हम ये इंटेंशनली क्रिएट कर सकें अपने लिए। सो एग्जैक्टली अब आप इसको उतनी गहराई से आप देखेंगे और सोचिए कि भाई ये जरूरी है, इसके लिए मेरे पास टाइम है, या तो फालतू मेरी सेकेंडरी प्रायोरिटी में आता है, प्राइमरी में नहीं आता। लेकिन भाई सारी जिंदगी तो आपकी जो ये माइंड और जो मन चला रहा है, इसको ट्रेन करने के तो थोड़ा टाइम दो। तो इसलिए बहुत अति आवश्यक है, जरूरी है, क्रिटिकल है। इसके बिना सदगति नहीं है, इसके बिना मैं तो कहूंगा जिंदगी ही नहीं। तो जब इसमें हमने जाना है तो ऑब्वियसली जोर लगेगा ना। अब बहाव उल्टा है, नदी के बहाव में उल्टा चलना है तो जोर लगना है। अगर नदी के साथ फ्लो में चलना है तो कोई जोर नहीं लगना, आराम से जिंदगी है, चल रही है, बह के निकल जाओगे जहां भी निकलना है। लेकिन अगर अक्रॉस द रिवर जाना है तो इट विल टेक सम हार्ड वर्क, एफर्ट, मसल, इंटेंशनैलिटी। So first of all, get that very, very clear. And that's very critical. Because you got to develop yourself not to listen to your mind when it stops you and it tells you, no, this is not meant for me, this is not my thing. No, this is as critical as any other lifestyle. So अब मैं बात कर रहा था कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, resources. Right? So हाई लेवल, एडवांस लेवल बहुत सारी मेडिटेशन अवेलेबल है, बेसिक लेवल मेडिटेशन अवेलेबल है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। तो मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करता हूं कि भी मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अब हमारे पास जो मेडिटेशंस हैं वो कहाँ का इफेक्टिव है और कैसे कैसे। जब मैं ये सब आपसे बात करूंगा तो आप ये देखिए कि आप अपने लिए कस्टमाइज रेसिपी बनाएंगे। आप एकदम से एक जगह डिसाइड करके नहीं बैठ जाएंगे कि नहीं यार ये तो नहीं है, मेरा तो मन नहीं लगता, मेरा तो ध्यान नहीं लगता, मेरे से तो आंखें नहीं बंद होती, मुझे तो चक्कर आते हैं, घबराहट होती है। नहीं, आप एक्सपीरियंस कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी पर्सनैलिटी को, माइंडसेट को, फिर चुनिए कि आपके लिए क्या सही है, जिसमें आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं विपासना मेडिटेशन की। मैंने विपासना करी, ये बहुत प्राचीन एक मेडिटेशन है जो गौतम बुद्ध ने दी थी और भारत में गोयनका जी इसको बर्मा से लेके आए थे। तो ये साधना जो है ये बहुत तपस्या जैसी है और इसमें आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं लिटरली 11 दिन मौन में रह के। और ये उस पे किस प्रिंसिपल पे आधारित है? ये प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कि नथिंग इज परमानेंट, राइट? एंड देन यू बी एन ऑब्जर्वर
without any attachment. And then you don't react, just be an observer. तो सबसे पहले 4 दिन आपको आनापान ध्यान कराते हैं, तो आपका ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेट फोकस करके आपके अपर लिप और नॉस्ट्रल्स पे, ताकि आपका ध्यान टिके, वरना क्या वेवरी है, भागता है, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाता है। तो यहां टिके। तो जब यहां टिकना शुरू होता है 4 दिन में, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग में उसको आप शरीर में ले जाते हैं भीतर, तो उस ध्यान से। और वो बड़ी साधना है, 12-12 घंटे की साधना है, बट वो हाई लेवल एडवांस, अगर आपकी इतनी सिटिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बट उसमें क्या है बेस्ट पार्ट, आप पूरा दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने आप को ध्यान में बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, जो भी हो रहा है होने देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते और अटैच भी नहीं होते। तो इस तरह से आपका माइंड ट्रेन किया जाता है, और जब आप वापस जिंदगी में जाते हैं तो आपके माइंड की वो ट्रेनिंग हो चुकी होती है, जिसमें वो अटैच नहीं होता, डिटैच रहता है और प्रतिक्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। मैंने जब करा बड़ा मजा आया। मतलब मैं आपको बताऊं, इवन a drop of water I could feel while taking shower. Imagine. My mind would be so quiet, and it there right now in that moment. It's not anywhere in the future or past. There's nothing called survival at that point in time. I could eat and bite one bread, chapati, 1 घंटा आराम आराम से मोर को देखते हुए और शांत मन से बैठ के, ऐसा एक्सपीरियंस लिटरली उस क्षण में, उस मोमेंट में। अब आप जो भी क्रिएट करोगे, कोई सर्वाइवल नहीं है, तो उसमें क्रिएशन जो है ब्यूटीफुल होनी है, कुछ भी क्रिएट कर लो आप। अब जब आप वो प्रैक्टिस को इतने 11 दिन आपने उस एनवायरमेंट में करिए, जब आप वापस जाते हो जिंदगी में, तो वो प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू मेंटेन रखते हो, तो आपकी माइंड ट्रेन होता है इसी तरह से। तो उसको आप घंटे की सेटिंग, आधे घंटे की सेटिंग, इस तरह से करके आप करते हो। तो फिर जिंदगी में क्या होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, सर्कमस्टेंस होती है, तो आपका माइंड को पता है, ट्रेन है, वो रिएक्ट नहीं करता, अटैच नहीं होता, तो सफरिंग और मिजरी कम हो जाती है। और सफरिंग और मिजरी कम होने से वो कहते हैं जो हमारे कर्म है और हमारे कर्मों की गांठें जो हैं, और नए कर्म नहीं क्रिएट होते हैं, तो वो पुराने जो कर्म हैं वो हमारे छूटते चले जाते हैं जब हम इस तरह से ध्यान में जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो राजयोग है, जो कि ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन है। उसमें हम लोग शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की जो डिवाइन लाइट है उस पर हम काम करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, उनसे वाइब्रेशन लेते हैं और वो वाइब्रेशन पास करते हैं। वो एक अलग तरह की प्रक्रिया है जिसे राजयोग बोलते हैं। तो कुछ लोगों को वो सूट करता है। अब ओशो ने क्या किया, ध्यान विधियां निकाली और इनको सरल करा। क्यों? अब हम बात कर रहे थे जब हमारा ध्यान जो है वो मन को हम बहलाने की बात करें, तो क्या होता है, डांस से, म्यूजिक से, संगीत से हमारा मन अच्छा बहलता है। तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत में इसी से शुरुआत करी कि भाई ध्यान से पहले डांस को लाया, लाफ्टर को लाया, इन सब चीजों को, जिससे क्या हुआ, इजी हो गया। जो लोगों को इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है डीप मेडिटेशन की, तो धीरे धीरे उनसे इन्होंने डांस के साथ अटैच कर दी मेडिटेशन। तो मेरा भी मन बड़ा अच्छा डांस में लगता था और इन सब चीजों में, इसलिए मुझे वो जल्दी पकड़ में आई चीजें। तो मैंने देखा अपने आप को कि मुझे क्या सूट करता है, और मैं तो बड़ा क्लियर था कि नहीं, बस मुझे इसको अपना लाइफस्टाइल पार्ट बनाना। कि मुझे समझ आ चुकी थी कि भाई ये जो है ना, मन को जीतना है, तभी जग जीत होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। तो मैंने ये चुना। अब इसमें जब हम आगे आगे बढ़े और चीजें देखनी शुरू करी कि अब ये ध्यान प्रतिक्रिया में उतरा कैसे जाए, अब एज ए बिगनर। सो उन्होंने एक बड़ी अच्छी थेरेपी दी जिसको जिब्रिश का नाम दिया गया। तो मैं थोड़ा जिब्रिश के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ये ना हमारा वार्म अप होता है। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो उसके पहले हम वार्म अप करते हैं, राइट? तो वार्म अप करने से हमारा अच्छा वर्कआउट होता है। तो उसी तरह मेडिटेशन से पहले कुछ वार्म अप चीजें हैं। और जिब्रिश बहुत बढ़िया टूल है
जिससे आप अपने आप को खाली कर सकते हैं। जिबरिश है नॉन सेंस लैंग्वेज, नो सेंस लैंग्वेज, ऊट पटांग अनाप शनाप कुछ भी बोलना, लेकिन आपका मन डिस्कनेक्ट और डिसएंगेज होगा क्योंकि कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई लैंग्वेज हो तो माइंड को आपको उसको सेंटेंस देना है, ग्रामर देनी है, उसकी पूरी दुनिया जो होती है राइट लैंग्वेज की, वो आपका मन से होके गुजरती है, तो इसलिए वो एंगेज रहता है। तो इसमें आपको बिल्कुल कुछ भी बात करनी है, कुछ भी एक्सप्रेशंस करने हैं, कुछ भी, बट वो कोई लैंग्वेज नहीं होगी राइट, अनाप शनाप कुछ भी बोलना है। अब इससे होता क्या है, अब इससे जब आप ये शुरुआत में शुरू करते हैं तो धीरे 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 आप इसमें गहरे उतरते हैं। तो ये जिब्रिश जो आपके अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस, जो सफरिंग्स पुरानी दबी हुई हैं, जो आपने अंदर सप्रेस करी हैं, वो ऊपर आती हैं। वो ऊपर आती हैं, वो किसी भी फॉर्म में ऊपर आ सकती हैं। वो आपको क्राइंग आ सकती है, रोना आ सकता है, यू कैन स्टार्ट लाफिंग, यू कैन गेट एंग्री, अंदर कोई इमोशन गुस्से की है वो बाहर आ सकती है, चीखना चिल्लाना हो सकता है। बट अगर आप ये ऐसे कहीं भी करते हो तो लोग आपको पागल कहते हैं राइट। मैं आपको बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं काफी साल पहले की बात है, तो जम्मू में था, मैं ये जिब्रिश कर रहा था, आवाजें निकाल रहा था। तो मैं अंदर था, तो बाहर आया जब मैं, तो मेरी मॉम बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा मॉम क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, जब तू कर रहा था अंदर तो वो एक डिलीवरी वाला आया था गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने, तो उसने मेरे से पूछा ये क्या हो रहा है, कौन आवाजें निकाल रहा है? तो मैंने उसको ऐसे ही हंसते से बोल दिया पागल है, यू नो। वो बंदा कहते हैं वो वही सिलेंडर छोड़ के, मेरी मॉम कहते हैं वो भाग लिया, एंड मॉम कहती मैं उसको आवाजें लगा रही वापस आ जा, एंड नहीं एग्जैक्टली लाइक यू नो। सो वो बोल रहा है कि पागल, एक्चुअली किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जब आप किसी को ऐसे देखते हैं जो किसी इस अवस्था में होते हैं, उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है या जो भी उनके सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उनकी जो भी वो कर रहे होते हैं, उनका जो माइंड है वो डिस्कनेक्टेड होता है, डिसएंगेज होता है। उसी तरह से जब हम जिब्रिश करते हैं तो हमारा माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम खाली कर सकते हैं, जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो खाली हो जाता है। तो अच्छी बात है ना। अब ये सब जो चीजें, फ्रस्ट्रेशन तो होनी है, क्योंकि जो हमारा माइंड है जो सेट है एक सर्वाइवल पे चलने के लिए, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आनी है, रेस में उसने थकना है, तो वो किसी ना किसी पे निकलनी है। तो बेहतर नहीं है कि आप अगर वो खुद ही एफर्ट करके निकाल लो। 10-15 मिनट की जब आप ये प्रक्रिया करते हैं, ये आप थेरेपी करते हैं जिब्रिश, तो आप एकदम खाली हो जाते हैं और आप तैयार हो जाते हैं। आपके अंदर से नेगेटिव हार्मोन्स जो होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो उसके अंदर आप कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स को क्रिएट कर सकते हैं राइट। सो जिब्रिश एक बहुत बढ़िया, मैं कहता हूं, टूल है, और ये एक ऐसी थेरेपी है जिससे बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, और ये खाली कर देता है आपको, और उसको आप फिर अपनी जो अपनी एनर्जी है उसको अंदर आप पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं उस पर लाफ्टर के भर सकते हैं। अब लाफ्टर, मैं आपसे बात कर रहा था ल्यूक की, उन्होंने बोला लाफ्टर हैज बीन ए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नाउ, एंड लाफ्टर helps you like in the neuroendocrine system, and the laughter about boosts your immunity. It fights with a lot of your type 2 diabetes and a lot of other stuff. But then laughter is also an exercise where we can really put in our best to laugh it out, right? वैसे तो हम हंसते हैं, दोस्तों के साथ हंस लिया, जोक्स पे हंस लिया, आजकल टिकटॉक के उसके ऊपर हंस लिया, बहुत सारी चीजों में हम बहुत सारा हंस लेते हैं राइट। लेकिन इंटेंशनल लाफ्टर जो कि क्रिएट करना है वो डिफरेंट है, जिसको हम लाफ्टर योगा का नाम भी देते हैं, लाफ्टर थेरेपी का नाम देते हैं। तो आपको इंटेंशनल वो लाफ्टर क्रिएट करना है और वो गट से हंसना है लिटरली। तो वो जो लाफ्टर है वो जब आप क्रिएट करते हो तो एक पॉजिटिव हार्मोन्स आपके बॉडी में जनरेट होते हैं, जो कि आपको आपका इम्यून सिस्टम ठीक करते हैं और आपको बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन है जिब्रिश लाफ्टर, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड ड्रग की तरह है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने इस पे काफी काम किया है और ये बहुत इफेक्टिव रहता है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, आपका होमवर्क तैयार हो गया। आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जीज थी बॉडी में, आपने एक्टिवेट करी, लाफ्टर से भी होती है, जिब्रिश से भी होती है,
और इसमें आप डांस भी ला सकते हैं। सो मैं आपको इसके ऊपर अभी डेमो भी दूंगा इन सब चीजों का। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब डांस से क्या होता है, आप डांस कैसा करना है। सो जो डांस करना है वो भी इस तरह से करना है जैसे पागलपन में डांस नाचना है, जैसे कोई आपको देख ना रहा हो। सवाल यह है कि आप ऐसे कभी भी किसी हम नाचते हैं तो कॉन्शियस होकर नाचते हैं, राइट। हंसते हैं तो बड़े स्टाइल से हंसते हैं, कॉन्शियस होकर सोफिस्टिकेट तरीके से हंसते हैं। आप पागलों की तरह हंसते नाचते नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि लोग आपको जज करेंगे। वही आपका मन आपको रोकेगा, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप अपने मन के अधीन हो गए, वापिस आप मन के बंदी बन गए। तो मन की सीमा के तो पार गए ही नहीं। जब आप मन की सीमा के पार नहीं गए तो फिर तो मन आपको चला रहा है, अभी तक चलाते आगे भी चलाएगा। अब जो मैं पागलपन की बात करूं, आप कमरे में अपने आप को बंद करो और वहां ऐसे नाचना है, ऐसे जिब्रिश करनी है, चीखना चलाना, ताकि आपको कोई नहीं देख रहा। वो आपका अपना टाइम है, उसमें कोई जजमेंट का डर नहीं है। जब आपका मन आपको रोक रहा है, आप उससे परे जा रहे हो, आप उसका एक स्टेप आगे जा रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो, उसकी सीमाओं को तोड़ रहे हो और आप वो सब कर रहे हो। इसी में आपका डिस्कनेक्ट और डिसएंगेज होगा, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। जो हमने वो टाइम क्रिएट करना है, जो अपने लिए वो क्षण क्रिएट करना है जिसमें हम वो हो सकें, जब हम मन से परे जा सकें और हम टोटली अपनी जो माइंड सेट है, जो हमारा कंडीशनड और पूरा जो हार्ड डिस्क में सेव है, उससे परे जाना हमको। ट्रेनिंग वो है और वो बहुत जरूरी है लाइफ में। इसीलिए ये जो थेरेपीज हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, आपको ऐसे करनी है, अपना बेस्ट देना है, राइट। और जब आपने डिसाइड किया कि अब मैंने रुकना है, तब रुकना है। जब मन ने बोला थक गया पहली बार में या बस हो गया, या तब नहीं रुकना, तब उसके एक स्टेप और परे जाना है। तो ये इसमें की है और इसको अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर जब आपने ये डांस करा, अब ये जो एनर्जी आपकी सारी एक्टिवेट होगी बॉडी में, हमारी ना ब्लॉक्ड एनर्जीज होती हैं, ये एनर्जीज हमारी चार्ज अप होगी। जब ये एनर्जीज चार्ज अप होगी, अब यही एनर्जीज, हमारा शरीर टूटता है, हमारा मन टूटता है, हमारा मन थकता है तो शांत होता है। अब जब वो शांत मन है तो वो आपको उस वक्त ध्यान में जाने में हेल्प करता है। तो जब आपकी एनर्जीज पूरी तरह एक्टिवेट हो गई हैं, आपने काफी, आपको थका फील कर रहा है मन, तो आप उसके बाद सिटिंग में जाते हैं। मैंने ये जो मेडिटेशंस हैं, ये मैंने अपनी कस्टमाइज करी। आप भी कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। आपको लगता है कि आप जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है और जिसमें आपको अच्छा लगे और आप अपने मन के साथ क्या कहते हैं, टग ऑफ वॉर कर सके और उससे जीत सके, तो वो आपको अच्छी नहीं। सो फिर अब सिटिंग है। अब सिटिंग में जब आप बैठते हैं, अब मैं आपको बताता हूं ध्यान है क्या। थॉट्स को रोकना या कुछ भी करना ध्यान नहीं है। आपने जब बैठना है, आपने जब अपने पूरी एनर्जी एक्टिवेट हुई है और आपका माइंड थका हुआ है, तो वो क्षण में आपने आंखें बंद करके बैठ के भीतर उतरना है और कुछ करना नहीं है, बस वहां पर मौजूद होना है। जस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। यू नो, हम मोस्टली अगर बैठते हैं तो हमें कोई शोर आ रहा है, हम बोल रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम गुस्सा कर देंगे, या कुछ और इचिंग हो रही है तो हम इधर उधर, तो हमारा जो माइंड है ना, उसने ये सब करना है। बट हम जब वहां मौजूद हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हम रिएक्ट नहीं कर रहे, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे अटैच नहीं हो रहे कि नहीं वो जहां हमारे को मन भाव में ले जा रहा है और हम बह रहे हैं। नहीं, यही ध्यान आपने सिर्फ देखना है और देखते देखते आपके विचार आएंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, आपको पूरी जगह की सैर करा देंगे। लेकिन बेस्ट पार्ट इज व्हाट, यू विल गेट few seconds in the beginning of that stage where you will be right now in that moment. I've experienced that. You know, those seconds start increasing with your practice, and then when in those seconds your mind is getting trained again to be right there at that moment, you not reacting, you just observing and seeing what's happening.
your conscious mind and that stage will be so micro, you can even feel complete your like heartbeats, your wind passing through your veins, everything, like you are so into it. And that's what we call to train your mind. And once you're training your mind, वो जो मोमेंट और क्षण लम्हे हैं वो आप जिंदगी में लेके जा रहे हो वो जीने के लिए। तो ये सिटिंग है। अब इस सिटिंग में अब लोगों को यही आएगा कि भाई यार बस थोड़ी देर ही होता है, हमसे नहीं होता। अरे यार कुछ नहीं है, आपको तो सिर्फ बैठना है आंख बंद करके, बाकी कुछ नहीं करना। आपके मन आपको बोलेगा आंख खोल, आंख खोलेंगे तो मन बाहर जाता है, आंख बंद करके अंदर जाएंगे ना, भीतर की जर्नी है। तो यहां पर आपको बैठना है, बस धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाएं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सके, लेकिन वो बैठना है, अपने आप के साथ बैठना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो बैठने वाले क्षण जिसमें आपको वो कुछ सेकंड्स मिलेंगे जिसमें वो जो डिवाइन और एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, एक आनंद की फीलिंग है, वो जिंदगी का हिस्सा बनाना है हमें, उसको लाइफस्टाइल में ले जाना है हमने, उसी मोमेंट्स में जिंदगी जीनी है, उसी को बढ़ाना है। ये सर्वाइवल की जो हमारी हार्ड डिस्क सेट होके आई हुई है, ये तो अपना काम करते रहेगी, लेकिन हमको अपना दूसरा टाइम बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? वो जब हम बैठना शुरू करेंगे अपने आप के साथ। हम बोलेंगे टाइम ही नहीं है यार, ये सब क्या फालतू। नहीं, जब आप इसमें उतरोगे तो आपको लगेगा ये आज की डेट में सबसे क्रिटिकल है, इसके लिए टाइम निकालना है। इसके लिए टाइम निकाला तो बाकी सब चीजों के लिए टाइम निकलेगा। नहीं, सीधी सी बात है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इसको अपना हिस्सा बना लेंगे तो हम अपने लाइफस्टाइल डिजीज से बच जाएंगे ना। नहीं तो पूरा जिंदगी क्या पैसा बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या डायबिटीज और शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आज इतनी यंग डेथ्स हो रही हैं, उसके बाद क्या फायदा बताओ मुझे उन सब चीजों का। और अगर यही बैलेंस से चल के यही जिंदगी के कुछ लम्हे जिए होते साथ साथ में, तो जिंदगी सेलिब्रेशन है। हम अपने मन के मालिक बन रहे हैं, हम अपने माइंड को अपने हिसाब से चला रहे हैं, ना कि हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये जो इसलिए मेडिटेशन अब इसमें से आप चुनते हैं और फिर आप मेडिटेशंस की प्रैक्टिस में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं शुरुआत करता हूं जिब्रिश से, और उसके बाद मैं थोड़ा इसमें लाफ्टर ऐड करता हूं, और फिर थोड़ा डांस, और फिर ध्यान में उतरता हूं, और वो सेटिंग्स करता हूं। तो इसलिए आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, और किस तरह से करना है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। बट पहले ये बात ध्यान रखिए कि मतलब पागलपंती के लिए तैयार होना है, और लिटरली पागल होना है, और इंटेंशनल पागल होना है, तभी इसके पिंजरे से छूटेंगे, नहीं तो इसने तो जकड़ा हुआ है। ओके, सो जिब्रिश के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ कंफर्टेबल स्पेस, ठीक है, आपकी पर्सनल स्पेस हो, और आपको बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आंखें बंद रखनी है। और इमोशंस आएंगी, कुछ भी आए तो उसके लिए आप अपने कोई क्वेश्चन रख लीजिए, आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, बहुत अंदर से गुस्सा आता है और अंदर से बहुत सारा चीखना चिल्लाना होता है, तो कई बार चोट लग सकती है जब हमारे हाथ चलता है। तो अगर क्वेश्चन होगा, पिल्लो होगा सॉफ्ट, तो उससे आपको चोट नहीं लगेगी। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको ये रिस्पॉन्सिबली करना है, और जो होगा होने देना है, कुछ गलत नहीं है। जो भावना आ रही है, जो इमोशंस का फ्लो उठ रहा है, उसको उठने देना और उसको चलने देना। अपने आप जब प्रैक्टिस डेवलप होगी धीरे धीरे धीरे, तो ये अच्छा रिजल्ट आएगा। सो लेट मी start by giving you a demo.
So this was gibberish, right? इसको आपको you have to continue doing it for like 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, जितना भी ला सकते हैं, and then make it a practice. So ये gibberish से क्या होगा, आप खाली हो जाओगे. जो भी आपके अंदर कोई frustrations हैं, जो भी आपके अंदर कुछ और चीज़ें भरी हुई हैं, कोई जो वो निकल जाएंगी, right? इससे खाली हो जाएगा आप. तो जब खाली होना बहुत ज़रूरी है. इसी को हम बोलते हैं one of the process in mental hygiene where you kind of empty this out for yourself. Then after this is done, then what you do is you have to laugh, and you all know how to laugh, but I will still tell you how actually to laugh, because what are the benefits of laughter, right? So the benefits of laughter are, it like definitely it's like these days helps you to improve your hormones, positive hormones, and then build up your immune system. So and how do you laugh? इतना ऐसे हंसना है कि आपका पेट दुख जाए और आपको खांसी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने रुकना नहीं, हंसते जाना, हंसते जाना, हंसते जाना, राइट? So I just did for 30 seconds, right? तो इसको आपको पूरा जोर लगा के हंसना है, राइट? आपका जो कोर एब्डोमिनल मसल है, यहाँ पर स्ट्रेच फील होना चाहिए. आपको यहाँ पर लगे कि दम लग रहा है. और जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, उन्होंने बोला कि जब 15 मिनट का लाफ्टर जो है ना, आप इस तरह हंसते हैं, वो इक्वलेंट टू 15 मिनट ऑफ ट्रेडमिल पे भागने जैसा है, राइट? Once you are like running on a treadmill at like 6 to 9 kilometers per hour, it's like that much calories you burn once you laugh, right? And then you can just do a lot of things in laughter and combine it with your family members, and then keep laughing. You can just roll on the floor, do whatever. I'm going to say, like, somebody should see you and tell you like you are insane, right? The way you're laughing. But then that's how we need to kind of train again our mind and let that melatonin and all those in our body, the hormones should get generated, right? Improves the blood circulation, oxygenation, lot of benefits. So, and how you can manifest this and improvise on this with your family members, kids, everybody else, right? So like they can be like, you can do another like activity of laughter by using like something like this. He, ha ha ha, ha ha, hoo 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 hoo, hey hey hey, ho 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 ho, ha 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 ha, he hey hey ho ho, hey hey ha ha, he hoo 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 hoo, ha ha ha, hey hey ho ho ho, ha ha ha, he hey ho, ha ha ha. So then you can just tickle your kids, your family members. You can do a lot of funny things, and then you can keep laughing, and then make this as a good practice so that everybody's involved, and then you have a family time too, right? It's a very interactive thing, and then you can like say after that, once you're doing this, and it's going, yeah, very good, yeah, बहुत अच्छे, yeah, he, ha 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 ha,
ho, he he he, he he, he he, ha ha ha, ha ha ha, ho ho ho. So yeah, so this is another form of laughter where you can bring in a lot of people and practice in a group. That will just definitely help you do this. So now, so these were the two types of laughter. There's one more laughter. It's a silence laughter, right? So you build on that, and then how you do that? Just watch me, okay? So this is again silence laughter where you're laughing but there's no voice. So again, so you see me, like there's a lot of right now sweaters that happen. I burn a lot of calories by just like doing little demo with you. So that's the benefit of laughter. So now my energy is like all charged up, right? I've shown you gibberish and this laughter, and then you can add dance by like putting some music which is like very fast and peppy, right? And then तुम उसमें झूम सको, मस्त हो सको. मतलब तुम्हारा ये डिस्कनेक्ट होना चाहिए, सोचे नहीं कि भाई तुम्हें मूव करनी है, स्टेप करने कैसे करना है. इसीलिए ये सब चीजें जो अपनी प्राइवेट स्पेस पे करते हो तो बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देती है. सो जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया, जिब्रिश से आपने अपना वार्म अप करा, लाफ्टर ऐड कर लिया, नाउ यू आर गोना ऐड डांस टू इट, राइट? एंड देन डांस ऑल्सो, आप कोई फिल्मी पंजाबी भांगड़ा लगा लो, वो भी ठीक है, बट कोई ऐसे म्यूजिक हो जिसमें थोड़ा सा आपका माइंड जो है सूदिंग रहे, डिस्कनेक्ट हो, तो वो दूसरी जगह ना थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए, राइट? सो आई विल टेल यू लाइक व्हाट नाउ हाउ वी कैन ऐड दिस डांस टू दिस. Close your eyes. The important thing is eyes close. Eyes close नहीं होंगी तो बाहर जाएगा ध्यान. हमको भीतर ले जाना है और मस्त होके झूमना है बिना सोचे समझे. पूरा दम लगाना है और माइंड आपको लगे थक रहे हैं, सांस फूल रही है, लेकिन नहीं, रुकना नहीं है, पूरा एक्टिवेट करनी है अपनी बॉडी, पूरी एनर्जी. So yeah, so you can do this in intervals, right? ये डांस एक सीक्वेंस किया थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद इसको 10 मिनट, फिर 2 मिनट या 5 मिनट का आपने बीच में पॉज लिया और साइलेंट हो गए एकदम स्टैचू स्टेज में, और फिर आपने अपने आप को ऑब्जर्व करा. सो द पॉइंट इज, सो वट एवर एनर्जी वी हैव एक्यूमुलेटेड एंड देन गॉट एक्टिवेटेड, वही एनर्जी जब हमारा माइंड थक रहे, वो उसी एनर्जी से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, और जब
ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे। बिकॉज अगर वो हमारा पूरी बॉडी चार्ज अप नहीं होगी तो फिर वो हमारा मन भटकेगा और वो अलग अलग डायरेक्शन में फिर थॉट्स आएंगे। तो वो हमारे को जो स्पेशल कुछ चंद लम्हे मोमेंट्स हैं जो उस प्रेजेंट मोमेंट के, वो नहीं मिलेंगे, वो कम मिलेंगे। सो जितना आप एक्सर्ट करेंगे, जितना आप एनर्जी को अपनी बाहर लाएंगे, उतना बेटर आपका ध्यान लगेगा। अब उसके बाद आपने जब सिटिंग में बैठ गए, मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लेटे ना, बिकॉज अगर हम लेटते हैं तो नींद आ जाती है, राइट। अगर आप बैठ जाएं और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और जब आपकी एनर्जी एक्टिवेटेड है तो उसको 10 मिनट कम से कम करें, 10-15 मिनट। मैंने तो अभी जस्ट डेमो दिया है, तो ये बिल्डअप करके फिर आप बैठें सिटिंग में, और सिटिंग कम से कम 15-20 मिनट के लिए बैठे। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, कुछ करना नहीं, जस्ट ऑब्जर्व करें। जो हो रहा है उसे होने दें। कोई हरकत नहीं करनी है, कुछ भी रिएक्शन नहीं करनी है। पसीना आ रहा है, आने दें। इचिंग हो रही है, होने दें। कोई भी शोर आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं, बस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो होता रहेगा, बस आप उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहें। जब ध्यान भटके कोई बात नहीं, उसके बाद वापस उस क्षण में एक्सपीरियंस द साइलेंस, वो मौन को अनुभव करें। वो जो क्षण है जिसमें आपको कंप्लीट ब्लिस है इस वक्त, ये लम्हा यही है। इसमें कोई रेस नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई सर्वाइवल नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लुकिंग गुड नहीं है। जस्ट आप हैं और ये लम्हा है, ये क्षण है। देखते रहें। आप यकीन मानिए, इतना भीतर गहरा साइलेंस होता है कि आपको दूर दूर तक की जो आवाज़ें हैं, कई बार जब मैं ध्यान में होता था तो इवन दूर पहाड़ों में कहीं पर कुछ पक्षियों की आवाज़ें हैं, कुछ और हो रहा है, वो तक सुनाई देती हैं। आपकी ऐसी वाइब्रेशंस और तरंगें जुड़ जाती हैं, रेजोनेंस होती है, आप अपने आप को यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करते हैं। तो ये वो आपका असली रूप है, ये वो आप हैं। अभी तक हमारी ज़िंदगी जो हम जीते आ रहे हैं, हमारा मन जैसे चला रहा है हमें, उसकी जो कंडीशनिंग हुई है पास्ट की, बचपन की, वो सर्वाइवल मोड से हम चल रहे हैं और उसी पे ज़िंदगी जी रहे हैं। बट वो हम नहीं हैं। हमने जो अभी एहसास किया, जो क्षण, जो लम्हे हमें मिले ब्लिस के, उसमें जो थी जो चेतना, जो देख रहे थे हम, वो हम हैं। और अब जब उससे अब आप ज़िंदगी जीते हो, अब इस माइंड की ये जो अभी आपकी स्थिति है, अवस्था है, आपका जो माइंड सेट है, इसको जब अपनी लाइफ में लेके जाते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, उसमें आप क्रिएट करो। आप देखो आपके बिजनेसेस में, आपकी ऑफिस में, आपकी प्रोडक्टिविटी मेनी फोल्ड्स वुड इंक्रीज, बिकॉज यू आर लिसनिंग, राइट। कोई लंबी चौड़ी मीटिंग्स करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स करता था, अंदर चल रहा है मेरा, सुन ही रहा हूँ, सर्वाइवल मोड चल रहा है। अगर इस स्थिति में होऊंगा तो मुझे कुछ मिनट लगेंगे डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में, तो प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। जब हम इस तरह से एक दूसरे को, अपने पार्टनर्स को सुनेंगे, तो रिलेशनशिप्स कमाल के हो जाएंगे। रिलेशनशिप में क्या होगा? प्यार होगा खूब सारा, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मुझे लगा कि यार ये इतना क्रिटिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, वो ऑटोमेटिसिटी के लिए। और इस पे अगर हम थोड़ा सा समय दें, अपना
15-20 मिनट की सिटिंग से शुरू करें और इस तरह से माइंड को ट्रेन करें, और फिर वो जो जिंदगी को अपनी सर्कमस्टेंस सिचुएशंस में लेके अपने माइंड की ये जो रीसेटिंग हमने करी है, इससे जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी कमाल होगी। और ये मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता हूं कि जो लाइफस्टाइल का अगर हम ये पार्ट बनाते हैं, मेडिटेशन प्रोसेसेस को और अपनी ये सिटिंग को, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बहुत बहुत बेहतर होती है। हम डिजीज फ्री होते हैं, हम हेल्दी होते हैं, हम खुशी से अपनी जो चीजें करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, राइट। हम इम्प्रेजेंट नहीं है। ऑटोमेटिसिटी जो हो रही है हम उसको पार कर सकते हैं धीरे धीरे, ये टाइम बढ़ाने से, ये अपनी मेडिटेटिव स्टेट को अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करने से। तो देखिए, मैं इसका आपको एडवांटेज बता रहा हूं। एक, कितनी आप जब जिब्रिश कर रहे हैं तो आपका एक फेस योगा हो रहा है, राइट। आपकी जॉ लाइन चिजल्ड हो रही है, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आपको कितने फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। और ऊपर से आपकी जिंदगी में बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बताइए आपको क्या, और मेरे को, आपको, हम दोनों को क्या चाहिए होगा इसके अलावा। तो फिर हम सोचते नहीं यार, ये तो टाइम मिलेगा तब करेंगे। मैं कहता हूं ये कर लिया तो जिंदगी मिल गई, टाइम तो बहुत मिल जाएगा। जो जिंदगी हमारी निकली जा रही है हाथों से, तो कृपया इंतजार ना करें ताकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके लिखे कि नहीं ये जरूरी बना लो मेडिटेशन को, लाफ्टर को अपनी जिंदगी में। आप लोग एवरेस्ट योगा से जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूट से, आप योगा करो। योगा करके उसके अंदर इतना आप अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने ट्रेन कर सकते हो माइंड को, उसके बाद सिटिंग कर लो। मैं लेडीज से बात कर रहा हूं जो आजकल घर पे काम करती हैं। घर पे काम कर थक जाते हो ना, आप उसके बाद सिटिंग कर लो। अगर आपको नहीं है डांस, जिब्रिश, ये सब चीजें करना, बट आप थोड़ी देर बैठो तो सही अपने आप के साथ, थोड़ा ये समय तो दो। ये समय देना, आप बोल रहे नहीं आपको क्या पता इतने काम होते हैं, हमारे पास तो समय नहीं है। मैं कहता हूं ये समय दो तो समय इतना हो जाएगा कि आप उसमें सब कुछ कर सकते हो। और ये समय नहीं दिया तो बाद में आगे जाके हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ेंगे, इतना पैसा कमाया, सब कुछ किया, क्या फायदा उसका। तो इसीलिए इसको क्रिटिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएं, अपने लाइफस्टाइल में लेके आए। कुछ भी हो, मुझे ये समझ आई इतने सालों से कि ये है तो मन शांत है, शांत मन से जिंदगी रंगीन है। ये मेरे आज के सेशन में जो मैंने आपसे शेयर करा, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, कुछ लोग शुरू से थे, तो आप लोग बाद में इसको देख सकते हैं। बट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा अच्छा लगने से कुछ होने वाला नहीं है। एक कमिटमेंट करो कि चाहे 15 मिनट से ही, 20 मिनट से ही, कुछ मर्जी हो जाए, कुछ चीजें इधर की उधर हो जाए, उस दिन खाना छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। और इसको इतना पक्का नियत नहीं बना, उसके बाद जिंदगी जी के देखो, आपकी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पलट जाएगी जैसे आपको लगेगा यार और मैं क्या चाह रहा था, मैं भाग रहा हूं, हर चीज के पीछे भाग रहा हूं, और ये जिंदगी तो मेरे पास ही थी, मेरे अंदर भीतर ही थी, और मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। तो ये आनंदमयी जिंदगी की भेंट हम सब अगर समझ के स्वीकार करें तो मैं कहता हूं कुछ और नहीं चाहिए। सीरियसली, नथिंग एल्स व्हाट वी नीड एज ह्यूमन बीइंग्स। अपने सेल्फ, अपनी आत्मा और अपना जो एनर्जी है उसके साथ हमको जीना आ जाएगा। सर्कमस्टांसेस तो रहेंगे, देखिए सर्वाइव तो करना ही है, तो करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, हैप्पीली करेंगे। तो या सो I think I have explained you the whole concept with demonstrations as well, and hope it was of value, and then you're taking home some commitment to cause some meditational settings and integrate into your lifestyle. And thank you for coming. Thank you for
being here on Facebook live with me. And yeah, if anybody has any questions, for a couple of minutes I can address that if you want to ask anything. Otherwise, for me, the session is complete. Thank you. Have a great smiling day. Be blessed. Sabka mangal ho. And you can do a little gratitude to people around you after this. Go hug people once you're done with this. It feels so great and good.